بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 19ویں جو آیت ہے اس کے کچھ اس کا ایک پارٹ، یعنی پوری آیت نہیں، اس کا ایک پارٹ ہم کریں گے۔ اور اس میں جو ہمارا طریقہ کار وہ یہی ہے کہ ہمارے اردو کے بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربک کے الفاظ ہم نے اردو میں استعمال کیے ہوئے ہیں، اور ہم تھوڑی سی اگر محنت کریں تو انشاءاللہ ہمیں قرآن جو ہے وہ کافی حد تک پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ میں تفسیر کی بات نہیں کر رہا۔ اور یہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم ان کی مدد سے ہم کچھ سیکھیں گے۔ ہماری جو آیت ہے 19ویں قرآن پاک کی، وہ سٹارٹ ہوتی ہے او قصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ اب اس کو دیکھنے میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ساری کی ساری عربک ہے، شاید اس میں کوئی لفظ اردو کا استعمال کسی کو لگ رہا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن اس میں واحد ایک لفظ ایسا ہے جو میں نے اردو میں نہیں دیکھا۔ باقی یہ تمام الفاظ جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے اس میں حرف جر کو اگر نکال دیں، جیسے او ہے، یہ تو بار بار ریپیٹیشن ہو رہی ہے، یہ تھوڑے سے ہم سیکھیں گے تو یہ بھی ہمیں انشاءاللہ اس کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ اور تو یہ ایک لفظ ہے، یعنی جو میں نے اردو میں نہیں دیکھا ویسے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم اس کو۔ آؤ یا کا یہ ایک حرف جر ہے، کا، جیسے کہ سیب، اس کا مادہ ہے صاد، واو اور با، اور یہ اس مادے کے ساتھ جو قرآن میں الفاظ استعمال ہوئے وہ 77 ٹائمز ہیں، اور یہ اردو میں بہت زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ جیسے ہی اس کو سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ لفظ تو میرے لیے بالکل عام ہے۔ جیسے، یعنی یہ جیسے کا مطلب جو ہے کا، جیسے کہ زوردار بارش، سیب، من سے، من سے اس کا مطلب من ہے۔ آسمان کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، من السماء، اور اس کا مادہ ہے سمو، سین، میم اور واو، اور اس مادے کے ساتھ قرآن میں 493 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی اس لفظ کو جس کو پتہ ہے کہ آسمان کسے کہتے ہیں تو وہ قرآن کے 493 الفاظ کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ دو الفاظ ہیں، فی اور ہا۔ تو فی ہی، یہ لفظ ہے فی ہی، اس، فی میں، اور یہ اس میں، فی ہی اس میں، یہ لفظ بھی بار بار استعمال ہو رہا ہے۔ ظلمات، یہ ظلم ہم نے لفظ پڑھا تھا، ظلم اندھیرے کو کہتے ہیں، کسی کا حق نہ دینا، کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ پر نہ رکھنا۔ واو، یہ بار بار لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور رعدن، گرج، وا، اور دوبارہ یہ لفظ استعمال ہوا، اور برق، بجلی کو کہتے ہیں، برق سی رفتاری، یہ بھی ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ رات کا مادہ ہے، جیسے یہ پورا مادہ ہی ہے، را، عین اور دال، اور برق کا مادہ ہے با، را اور کاف۔ رات ان چند الفاظ میں ہے جو قرآن میں بہت کم استعمال ہوئے، یعنی یہ صرف 2 دفعہ لفظ استعمال ہوا، اور برق جو ہے یہ قرآن میں 6 دفعہ استعمال ہوا۔ تو ابھی ہم ذرا ان کا انالیسز کرتے ہیں ورڈز کا۔ پہلے ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے او یا قصیب، اس کا مادہ تھا ہمارے پاس صاد، واو اور با۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، یا اوپر لگا دینا کسی کے ساتھ، پہنچ جانا، اس کا یہ مادہ ہے۔ اچھا اب دیکھیے گا ذرا،
इस मादे को जो कुरान में कैसे और क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए इसके साथ, मैं ज़रा इसको करता हूँ। तुसी तुसिबकुम, मेरी उर्दू की लिखाई ज़रा, तुसिबकुम। अब देखिएगा, तो इसमें ता तुम्हारे लिए, कुम यानी तुमको, ठीक है ना, ये तुम सब के लिए, तो सिबकुम तुमको पहुंचती है। तो इसका हम तर्जमा करेंगे, देखें, का, कुमा और कुम। का कहते हैं एक तुम्हारा, इशारा करने के लिए, कुमा उन दोनों के लिए, तुम दोनों के लिए, और कुम तुम सब के लिए। ये अरबिक में ये इस्तेमाल होता है। तो सिबकुम तुमको पहुंचती है, तुमको पहुंचती है, तुमको पहुंचती है। ये ठीक है। अच्छा, इसी से लफ्ज़ जो है वो मुसीबत भी है। अब ये वो लफ्ज़ है जो आपने उर्दू में अक्सर इस्तेमाल किया, मुसीबत, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। तो इस मुसीबत का भी वही मादा है, स्वाद, वाव और बा। बहरहाल ये एक कंस्ट्रक्शन है, इसका एक और इल्म है कि ये मादा किस तरह से तब्दील होता है। तो ये इसी मादे का ही एक, यानी ये मुसीबत इसी मादे से बना हुआ है, तुसिबकुम। अच्छा, अब देखिएगा, अगर हम इसी मादा को और इस्तेमाल करें ज़रा, तो ये आता है असब, असब ना हम, असब ना हम। अब देखिएगा ना, ये ना क्या है, हम वो, ठीक है ना, हा हुमा और हम, हा वो, हुमा वो दोनों, और हम वो सब। तो ये आ गया, मुसीबत में डाल दिया हमने उनको, ठीक है। यानी सैयब का जो मादा है, इसी से मुसीबत लफ्ज बना हुआ है, इसी से क्या बना हुआ है, मुसीबत। तो असब ना हम, मुसीबत में डाल दिया, पहुंचा दिया उनको, ना हमने, हम उनको। देखिए मादे को जरा सीखने से और हमारी जो है वो हमें समझने में आसानी होती है। तो असब ना हम, ये उसका मादा था, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बेसिकली जो बारिश है, यानी कोई चीज़ जो ऊपर से नीचे आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं, पहुंचना। वो बारिश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो चीज़ पहुंच रही है जो नीचे आ रही है। अच्छा, इसी से उन्होंने तीर, एक और अरब में कहते हैं जब तीर अपने निशाने पे लग जाए, तो उसके लिए भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी से फिर बाद में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होना शुरू हो गया, मुसीबत यानी हादसा के मायनों में भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो असल में ये था कि किसी तक पहुंचना, ऊपर से नीचे आना, और यही लफ्ज़ जो था वो तीर के लिए इस्तेमाल हो गया। और तीर चूंकि एक हादसा होता है उसके उस दौर में, तो उसी के लिए फिर हमने इससे लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मुसीबत का। अच्छा, इसके एक अच्छे मीनिंग भी हैं, वो है सवाब। तो आप इस लफ्ज़ का, तो आपको पहुंचना, ठीक है ना, इसका भी है कि उसके लिए ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, सवाब, पहुंचना, उनके लिए उसका हक दे देना। तो ये एक लफ्ज़ था, जितना मुझे उसकी समझ आई मैंने आप तक वो पहुंचाने की कोशिश की है। आप खुद भी इन चीज़ों को सीखें, जैसे मैं सीखता हूँ उसी तरह से आप लोग भी इन चीज़ों को सीख सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास है जी मिनस समाइन। इसका मादा जो है हमारे पास वो था समू, सीन, मीम और वाव। इसका है ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं, यानी जो ये हिस्सा है, बालाई हिस्सा, ये जो ऊपर वाली मंजिल आपको नजर आ रही है, इसको सुमूफ, यानी इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो इसको आपको पता है, इंग्लिश में इसको ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, और ग्राउंड को उर्दू में अर्ज कहते हैं, जमीन। तो नीचे वाले हिस्से को अर्ज और ऊपर वाले हिस्से को, बलाई हिस्से को जो है वो समूह कहा जाता है।
और इसी तरह पौधों के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि पौधे जो हैं ज़मीन के ऊपर होते हैं ना, ये जो हिस्सा इनका होता है, इसलिए उनके लिए भी यही मादा इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आसमान के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम नॉर्मली उर्दू में इस्तेमाल करते हैं समूह का, ठीक है ना, ऊपर यानी ऊपर वाली जो जगह है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे इसके दो अल्फाज, रात, ठीक है, कड़क को कहते हैं, ये कुरान में सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ लफ्ज़। और बर्क, ये आपने लफ्ज़ बरकी जो है वो आलात का नाम सुना होगा, बरकी चीज़ें, इक्विपमेंट्स जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बनी हुई, तो बिजली हम ये बहुत आम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो वरादों व बर्क, और गरज और बिजली है। अब दोबारा ज़रा हम अपने उस आयत पे ज़रा जाएं, तो इसमें देखिएगा कि औ जैसे के, औ या का जैसे के, सैयब जोरदार बारिश, और दूसरा लफ्ज़ हमने क्या पढ़ा इसके लिए, क्या लफ्ज़ है, मुसीबत। तो बहुत तेज जो बारिश होती है वो भी तो मुसीबत ही होती है ना। तो ये मुसैयब, कसैयब, ठीक है, जैसे जोरदार बारिश, मिनस समाई, आसमान से, यानी ऊपर से नीचे आए वो, फी ही, और उसमें, जुलुमात, अंधेरे हैं, राइट, वरादुन, और रात गरज को कहते हैं, व बर्क, और बिजली है। ये हमारा पार्ट 1 था। इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 के साथ हम करेंगे इसको। और आप अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हमें भी अल्लाह ताला इस काम की हिम्मत दे और हम खुद भी कुरान को जो है वो समझने की कोशिश करें। बहुत कम अल्फाज हैं जो हमें नहीं पता होते, अक्सर अल्फाज का हमें पता होता है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हमें जो है वो कुरान जब पढ़ा जा रहा होगा तो हम उसको समझने के काबिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।